قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ آئندہ مالی سال FBR 12,970 ارب روپے اکٹھے کرے گا، جبکہ نان ٹیکس آمدن کی مد میں 4,845 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے لیے 9,775 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ پینشنرز کے لیے 10,014 ارب روپے، سبسڈیز کے لیے 1,363 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال دفاع پر 2,122 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے۔ اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ ہی عرصہ قبل معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا، افراط زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی طرف جا رہے تھے۔ IMF پروگرام میں تاخیر مزید مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ IMF پروگرام کے بعد غیر یقینی صورتحال ختم ہوئی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مہنگائی میں کبھی کوئی معمول کامیابی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید کمی ہوگی۔ شرح سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے غیر تنخواہ دار طبقے کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ کاروبار کی آمدن پر زیادہ سے زیادہ 45% انکم ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے سلیبس میں کچھ رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ روپے کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی زیادہ سے زیادہ سلیبس کو برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافے کی تجویز ہے۔ 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25%، جبکہ گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کی تنخواہوں میں 22% اضافے کی تجویز ہے۔ اسی طرح ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 22% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ ملازمین کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے سے بڑھا کر 36,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ کراچی میں 8 ارب روپے کی لاگت سے IT پارک بنایا جائے گا، جس کے لیے بجٹ میں رقم مختص کر دی گئی۔ ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 20 ارب روپے کی تجویز ہے۔ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ مزید وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر دانش اسکولوں کا دائرہ کار اسلام آباد، بلوچستان اور آزاد کشمیر تک بڑھایا جا رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خدمات کو سراہنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے آلات کی درآمد پر ٹیکس میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں پلانٹ مشینری اور منسلک آلات، سولر پینل، انورٹر اور بیٹریوں کی تیاری کا خام مال شامل ہے۔ مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش کے لیے سیڈ اور فیڈ کی درآمد پر ٹیکس میں رعایت دی جائے گی۔ پاٹا کو دی گئی انکم ٹیکس چھوٹ میں 1 سال کی توسیع کی جا رہی ہے۔ کاروں کی رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس انجن کیپیسٹی کے بجائے قیمت کی بنیاد پر نافذ ہوگا۔ نان فائلر ریٹیلرز اور ہول سیلرز پر ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نان فائلر ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے لیے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس 1% سے بڑھا کر 2.25% کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ کی سالانہ حد 6 لاکھ روپے برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ غیر تنخواہ دار افراد پر زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح 45% کر دی۔ 1 جولائی سے فائلرز کے لیے کیپٹل گین ٹیکس 15% ہوگا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نان فائلرز کے لیے مختلف سلیب کے تحت کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 45%، فائلر، نان فائلر اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرانے پر 3 مختلف ریٹس ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے دوران NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 1,777 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال وفاقی حکومتی اخراجات کا تخمینہ 839 ارب روپے لگایا گیا۔ ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 313 ارب روپے مختص کیے گئے۔ آئندہ مالی سال کے لیے مالیاتی خسارہ 8500 ارب روپے رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے 8500 ارب روپے خرچ لیا جائے گا۔ مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے آئندہ مالی سال ایکسٹرنل فائنینسنگ کا تخمینہ 666 ارب روپے لگایا گیا۔ مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے آئندہ مالی سال مقامی ذرائع سے تخمینہ 7803 ارب روپے کا لگایا گیا ہے۔
और नाज़रीन, खबर ये भी है कि इत्तेहादी हुकूमत के रवा साल 2024-25 के बजट इजलास में इत्तेहादियों समेत अहम तरीन सियासतदान गायब रहे। ज़राए के मुताबिक बजट इजलास में अहम तरीन सियासतदान और सीनियर अरकान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत न की, जबकि BNP मेंगल के सरबराह अख्तर जान मेंगल भी बजट इजलास से ला ताल्लुक रहे। तो दूसरी जानिब माजी में नून लीग के बड़े इत्तेहादी रहने वाले सीनियर तरीन सियासतदान और सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान भी बजट इजलास में शिरकत के लिए न आए। और नाज़रीन, इसहाक डार, तारिक फजल चौधरी के मुज़ाकरात के बावजूद ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की हाजिरी बराए नाम रही। बजट इजलास के पहले रोज इत्तेहादी भी नून लीगी हुकूमत से फासले पर नजर आ रहे हैं। इसहाक डार, तारिक फजल चौधरी के मुज़ाकरात के बावजूद पीपल्स पार्टी के ऐवान में हाजिरी बराए नाम रही है। इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अराकीन सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और एजाज जाखरानी शरीक हुए। इलावाजी इजलास में वजीर आजम की शिरकत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर नारेबाजी की और गो शहबाज गो के नारे लगाए। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में सीटियां और बाजे भी बजा दिए। और नाज़रीन, हुकूमत ने सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शरह खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से बजट में मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला किया गया। मोबाइल फोन की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल टैक्स लगेगा। तांबे, कोयला, कागज और प्लास्टिक के लिए स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला किया गया। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला किया गया। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली के बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, गो नवाज गो के नारे लगाए, स्पीकर डायस का घेराव किया। अपोजिशन अरकान ने झंडे की कापियां फाड़कर हवा में उछाल दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर सरताज गुल ने एहतजाज की फुटेज बनाई। जमशेद दस्ती ने ऐवान में जोरदार नारे लगाए। अपोजिशन अरकान ने गो शहबाज गो और शर्म करो हया करो के नारे भी लगाए। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में सीटियां और बाजे भी बजा दिए। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मलिक जुफैल वजीर आजम के सामने हसार बनाकर खड़े हो गए। रवा साल बजट में हुकूमत ने जाली सिगरेट्स फरोख्त करने वालों को सख्त सजाएं देने का फैसला किया है। बजट इजलास में वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि जाली सिगरेट्स फरोख्त करने वाली दुकानों को सील कर दिया जाएगा। सिगरेट फिल्टर की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले मवाद पर 44,000 रुपए फी किलो टैक्स लगाने का भी फैसला किया गया है। तो दूसरी जानिब सीमेंट पर FED की शरह में इजाफे का फैसला किया गया। सीमेंट पर FED 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई है।
सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी यह है कि आइंदा माली साल के बजट में उनकी तनख्वाहों में 25% तक इजाफे की तजवीज है। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज है। इसी तरह रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 22% इजाफे की तजवीज दी गई है। मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज है। कराची में 8 अरब रुपए की लागत से IT पार्क बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तैमूर यूसुफ ज़ई से। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर खजाना ने 8,877 रुपए हुजम का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, लेकिन इसमें आम आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। उसको जरा सा हमने देखना है कि ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाएगा, जबकि 17 से 22 ग्रेड मुलाजमीन के लिए 22% इजाफे की तजवीज है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए जो पेंशन में इजाफा है वो 22% है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि सहाफियों के पास, यानी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पहले सॉफ्ट कॉपी आई थी, उसमें 17 से 22 ग्रेड मुलाजिमीन के लिए 22% इजाफा था और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में 22% इजाफा था। बाद में इसमें चेंजेस की गई, 17 से 22 ग्रेड मुलाजिमीन के लिए 20% इजाफा कर दिया गया और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया। इसके साथ साथ मुल्क के सरकारी और गैर सरकारी इदारों में कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर की गई। सोलर पैनल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर दरामदी ड्यूटी में रियायत की तजवीज है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद की तादाद बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाएगी, जबकि इनकी माली मुआविनत भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले तुलबा की तादाद बढ़ाकर 1 करोड़ 40 लाख कर दी जाएगी और जाली सिगरेट की हौसला शिकनी यकीनी बनाने के लिए सिगरेट फिरोख्त करने वाले रिटेलर्स के लिए सिगरेट स्टैंप्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ बुरी खबरें जो है वो ये है कि हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी की छूट वापस लिए जाने की तजवीज दी गई है। बैरूनी मुल्क से लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर टैक्स और ड्यूटीज में रियायत खत्म की जा रही है। इसके साथ मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स इंजन की ताकत के बजाय गाड़ी की कीमत के मुताबिक वसूल करने की तजवीज है। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज है। इसके साथ सीमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 3% करने की तजवीज है। जो नॉन फाइलर्स हैं एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की बजाय उनसे 2.25% शरह लिया जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाकर फाइल्स के लिए 15% और नॉन फाइलर्स के लिए 45% करने की तजवीज है। इसके साथ साथ नए प्लाटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की सिफारिश है। स्टील और कागज की मसनूआत पर बैरून मुल्क से दरामद पर ड्यूटी में इजाफे की तजवीज है और सिगरेट के फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले जो एसीटेट 44,000 रुपए फी किलो FED लगाने की तजवीज है। जी बहुत शुक्रिया तैमूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बजट हुकूमत का नहीं बल्कि IMF का तैयार करता है। वजीर खजाना ने तकरीर में नाकामियों की दास्तान बयान की है। सहारों पर बनने वाली हुकूमत मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकदमा पाकिस्तान दुनिया के सामने लाना चाहिए। आलमी ताकतों की सनती पॉलिसी की वजह से माहौलियाती असरात से पाकिस्तान मुतासिर होता है। पाकिस्तान को कहना चाहिए कि ऐसे माहौल में कर्जे कैसे अदा करें। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं होने देगा। जो सहारों पर चलने वाली हुकूमत है वो किसी से क्या बात कर सकती है। आम आदमी पर 13 से 14 किस्म के सरकारी टैक्स लगाए गए हैं। जिन चीजों पर टैक्स नहीं लगा इस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। सरमायादारों और जागीरदारों को टैक्स छूट दे रहे हैं। बिजली और गैस की कीमतों में टैक्स वसूली में FBR का क्या किरदार है। FBR अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। टैक्स पे इकट्ठा नहीं कर सकते। टैक्स नेट में लोगों को लाना होगा।
जागीरदारों को टैक्स रेट में क्यों नहीं लाया जा रहा? ज़राअत में अगर ग्रोथ हुई, हुकूमत की पॉलिसी कहाँ है? करप्शन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सरकारी मुलाजम से काम करवाएं, तनख्वाह भी 50% बढ़ानी चाहिए। तालीम को सूबों के तहत करके इसके बजट में कमी कर दी। वजारत खजाना का वक्त खत्म होना है तो वजीर बाहर चले जाते हैं। वज़रा की तकरीरों का ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत की ITT पॉलिसी का किसी को इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी कौम के साथ क्या मजाक कर रही है? हुकूमत गिराने बनाने और अब हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल है। पीपल्स पार्टी अपना गवर्नर बाहर भेजकर हद तक के इज्जत का बिल मंजूर करवा देती है। हुकूमत फार्म 45 के मुताबिक होनी चाहिए। पूरी तहरीक की जरूरत के इलेक्शन इस्लाहात होनी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए 1 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशन किए, जिस दौरान 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पिछले कुछ अरसे में अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल की। बर वक्त इंटेलिजेंस की बदौलत ईद उल फित्र के बाद TTP के नापाक अज़ाइम और मंसूबे आश्कार होना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2,701 ऑपरेशन, बलूचिस्तान में 4,902 और सिंध में 142 ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 128, बलूचिस्तान में 51 और सिंध में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिर्फ मई के महीने में बलूचिस्तान में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 42 को हलाक किया गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मई के महीने में 61 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द तंजीम TTP शहरी इलाकों में अपने मजमूम अज़ाइम में नाकाम रही, जबकि नाकामी को छुपाने के लिए TTP ने कबायली इलाकों की गरीब आवाम को अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर मजबूर किया और निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आलमी मयार का कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर से मुतालिक इजलास मुनाकिद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने हेल्थ टावर की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर के हवाले से फौरी तौर पर लाही अमल तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहत का शोबा एक इंतहाई अहम और हसास शोबा है, जिसके ज़िम्मे इंसानी जानें बचाने का अहम फरीजा है। हेल्थ टावर में बेहतरीन मयार के अस्पतालों के अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शामिल की जाएगी, जबकि नर्सिंग यूनिवर्सिटी, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता लेबोरेटरीज और इमराज की तशखीस के मराकज भी कायम किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्की वसाइल को बुरोकार लाते हुए शराकतदारों की मदद से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने वज़ारत कौमी सेहत और उससे मुंसलिक इदारों में बेहतरीन इस्तेदाद के हेल्थ प्रोफेशनल्स की तैनाती समेत कौमी वज़ारत सेहत के ज़ेर तहत लेबोरेटरीज के मयार और कारकर्दगी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ड्रग प्राइसिंग को ड्रेप से अलग करने के हवाले से लाहे अमल तरतीब देने और इस्लामाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों का ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करवाने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना किया और वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर उमूर बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा किया। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट की लॉन्चिंग के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खुसूसी इजलास भी मुनाकिद हुआ। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इजलास में ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियां हटाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रेडियो के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लेन लाइन डिसिप्लिन पर सूरत यकीनी बनाने और रिक्शा और मोटर बाइक को लेन की पाबंदी के लिए आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत की। इजलास के दौरान लाहौर में इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का जायजा लिया गया, जबकि सड़कों पर तजावुजात के खात्मे के लिए मौसर और पायदार प्लानिंग की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने ट्रैफिक रहनुमाई के लिए नस्ब स्क्रीनें भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। इजलास में CTO अमारा अजहर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि खुसूसी ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट 5 कॉल पर ट्रैफिक जाम वाले एरिया में पहुंचेगा। 50 हैवी बाइक और 100 वार्डन्स पर मुश्तमिल स्पेशल यूनिट ट्रैफिक क्लियर करने के लिए फौरी कार्रवाई करेगा। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट को 1 माह के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कराई गई है। CTO ने मजीद बताया कि ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट को रेड क्रिसेंट से फर्स्ट एड कोर्स भी कराया गया। हर मोटर बाइक पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम और फर्स्ट एड बॉक्स भी नस्ब होंगे। ट्रैफिक वार्डन खुसूसी कैमरे के जरिए रिकॉर्डिंग भी करेगा।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताखीर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए मेंबर मोहलियात CDA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। उन्होंने चेयरमैन CDA को मेंबर मोहलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत करते हुए कहा कि ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब हो गए। PTI के सेनेटर शिबली फराज और मोहसिन अजीज ने सलीम मांडवीवाला के सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब होने पर शदीद एहतजाज किया और इजलास का बायकॉट किया। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा, कल रात तक कमेटियों के कयाम की किसी को खबर भी नहीं थी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जिस कमेटी का हुकूमत के एहतसाब से ताल्लुक होता है वो अपोजिशन के पास जाती है। दूसरी जानिब सेनेटर शहरी रहमान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि तासुर दिया जा रहा है कमेटियों में बेज़ाब्तगी हुई। आपकी मर्जी, ये कमेटी आपको नहीं मिली इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। इसके अलावा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कमेटियां हमेशा सेनेट सेक्रेटरीट ही बनाता है। जब अपोजिशन में थे हमने दाखिला और कानून की कमेटी मांगी थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान PTI अरकान ने एहतजाज किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, जिसका जो शेयर बनता है वो उसे मिलेगा, आप बेशक बायकॉट करें। और अब बात करें इसराइली बर्बरियत की, तो आपको बताएं कि इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हमला करके हिजबुल्लाह के सीनियर फील्ड कमांडर समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के गांव जोया में हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इसराइली हमले में शहीद होने वाला तालिब अब्दुल्ला हिजबुल्लाह का सीनियर रहनुमा था, जिसने 8 माह से इसराइल के खिलाफ हमले जारी रखे हुए थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से ही इसराइली फौज ने गजा के साथ साथ लबनान पर भी हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें अब तक हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 300 जंगजू शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइली फौजी अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जंगबंदी की कोशिशों पर इसराइल की हटधर्मी बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हुकाम का कहना है कि तमाम मकासद हासिल करने तक जंग नहीं रोकेंगे। जंगबंदी तजावीज इसराइल को मकासद के हुसूल की इजाजत देंगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गुज़श्ता रात गजा जंगबंदी की अमरीकी करारदाद मंजूर हुई। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की गजा जंगबंदी करारदाद का खैर मकदम किया है और तफसीलात पर बातचीत के लिए आमादगी भी जाहिर कर दी है। गजा में जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में इसराइली फौज के हमले अब भी जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। उधर इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे पे भी जारी है। छापामार कार्रवाइयों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों के जवाबी वार में रफा में 4 इसराइली फौजी मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह ने लबनान की हुदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। याद रहे कि 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शोहदा की तादाद 37,160 से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार नुमान एजाज के बेटे जावियार के नए फोटोशूट ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। हानिया आमिर और जावियार नुमान एजाज साल 2022 में ड्रामा मुझे प्यार हुआ था में एक साथ जलवागर हो चुके हैं और यही ड्रामा दोनों की दोस्ती की वजह बना। इस नए फोटोशूट में हानिया आमिर के हसीन सफेद पिशवास पर सुनहरे गोटे और सितारों की दिलकश काम देखा जा सकता है, जबकि नेट के दुपट्टे पर किरण लगी हुई है जो हानिया आमिर के हुस्न में इजाफा करती नजर आ रही है। इस ब्राइडल फोटोशूट में हानिया आमिर और जावियार नुमान कहीं एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए तो कहीं दोनों पर फूलों की बरसात होती नजर आई। मदाहों की सबसे ज्यादा पसंद आरसी मुसीब की रस्म आई, जिसमें दोनों आंखों में मोहब्बत लिए एक आईने में एक दूसरे को तकते नजर आ रहे हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया सार्फिन तारीफ की बरसात करते देख रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि दोनों की केमिस्ट्री इस ब्रांड फोटोशूट को हकीकी शादी का शूट मानने पर मजबूर कर रही है। अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट अस्पताल समनाबाद में सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नजीर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान की हिदायत पर खसरे की वार्ड कायम कर दी गई, जिसमें 5 बच्चे जेरे इलाज थे। 4 बच्चे सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज सैयद आसिफ इलियास से, जो इस वक्त मौजूद हैं MS गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल के साथ। जी आसिफ, बताइएगा।
جی اس وقت ہم گورنمنٹ سمنا آباد ہسپتال میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ MS ڈاکٹر زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق خسرہ وارڈ ہر ہسپتال میں بنائی گئی ہے, یہاں بھی سمنا آباد میں بھی خسرہ وارڈ کا انتظام کیا گیا ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ہدایت تھی, خواجہ صاحب عمران عزیز صاحب جو وزیر صحت ہیں ہمارے, ان کی خصوصی ہدایت تھی ہمارے لیے کہ آپ نے خسرے وارڈ کا قیام کرنا ہے, اور اس کے علاوہ نہ صرف خسرے وارڈ کا ہیٹ ویو اسٹروک کاؤنٹر بنانا ہے, وہ بھی ہمارے پاس نیچے ایمرجنسی میں بنا ہوا ہے, اور یہ خسرہ وارڈ ہے. کچھ کیسز خسرے کے ہمارے ہاسپٹل میں آئے ہیں, جو ابھی تک 4 کے قریب کیسز علاج ہو کے یہاں سے چلے گئے ہیں, اور ایک کیس جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے وہ زیر علاج ہے, اور تمام تر سہولیات خسرے کے مریضوں کے لیے یہاں پہ اویلیبل ہے. الحمدللہ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں کوئی کیس کمپلیکیٹ نہیں ہوا, اور سب ٹریٹ ہو کے گھروں پہ اپنے گئے ہیں. شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خسرے کے پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہیں ان لوگوں نے ویکسینیشن اپنے بچوں کو کروائی تھی کہ نہیں کروائی تھی؟ جی اس میں کچھ جو 3-4 لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا, ان میں سے جیسے کہ ابھی آپ نے بھی اندر دیکھا کہ اس نے پرپزلی اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی, مس ہو گئی ہے, یا یہ ریزن ہے, یا وہ ایسی ریزن ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں تھے پہلے مقیم اور اب لاہور میں آئے ہیں, تو ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی وہاں پہ, تو وہ مس ہوئی تھی. تو ویکسین تو والدین سے بھی میری درخواست ہے آپ کے تصفف سے کہ وہ اپنی ویکسین بچوں کی جو 9 ماہ کا میزل کا ٹیکہ وہ خصوصی طور پہ لگوائیں اور اس کو مس نہ کریں. شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ اگر ویکسینیشن کوئی ماں باپ اپنے بچے کی نہیں کرواتا, یہ مسنگ ہو جاتی ہے, کیا ایسا چانس ہے کہ اس کے اندر اثر ہو جاتا ہے کہ یہ کہ کوئی اچانک ہے کہ جیسا عام لوگ بیمار ہوتے ہیں بچے بھی اسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل جی, اگر کوئی خسرے کی ویکسین نہیں ہوئی تو پھر آپ کے بچہ تو رسک پہ ہے, پھر تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ بچے کو خسرے ہونے کے, جیسے کہ وبا آ جاتی ہے یا ایسا کوئی چیز آ جاتی ہے. تو یہ گرمی یہ سیزن جو ایسا ہے کہ جہاں پہ خسرہ پھیلتا ہے, تو پھر اور اگر ویکسین ہوئی ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ 95% چانسز نہ ہونے کے ہیں, اور 5% چانسز صرف وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ قوت مدافعت بچے کی کم ہوتی ہے, تو پھر اس کو خسرہ اٹیک کرتا ہے, ادروائز وہ سیف ہو جاتا ہے. ویکسین ضرور کروائیں. جی جیسے کہ ہمارے ساتھ MS ڈاکٹر زبیر تھے, انہوں نے کہا کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جیسے آپ کے گھروں میں پولیو کی یا خسرے کی ویکسینیشن والی ٹیم آئے تو اپنے بچوں کو لازم. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے پنجاب کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ڈیجیٹل سفر پروگرام لانچ کر دیا ہے. افتتاحی تقریب لاہور کے نجی ہوٹل میں منعقد کی گئی. رانا سکندر حیات بولے, ڈیجیٹل سفر کا مقصد طلبہ اور اساتذہ کو IT کی اہم مہارتوں سے آگاہ کرنا ہے. ہر ضلع کے ٹاپ پرفارمنس ٹیچر کو گاڑی کا تحفہ دیا جائے گا. اس موقع پر اساتذہ سمیت طلبہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. رانا سکندر حیات نے پنجاب کے اساتذہ اور طلبہ طالبات کے لیے ڈیجیٹل سفر پروگرام لانچ کر دیا. افتتاحی تقریب لاہور کے نجی ہوٹل میں منعقد کی گئی. انہوں نے کہا ڈیجیٹل سفر کا مقصد طلبہ اور اساتذہ کو IT کی اہم مہارتوں سے آگاہ کرنا ہے. پروگرام کے اجرا کا مقصد مستقبل کے لیے ٹیک پروفیشنلز پیدا کرنا ہے. ڈیجیٹل سفر سے پہلے مرحلے میں 1000 اساتذہ اور 50,000 طلبہ مستفید ہوں گے. طلبہ اور اساتذہ کو IT سکلز کے عہدہ پر براں کر کے ڈیجیٹل انقلاب لائیں گے. ٹیک ویلی اور گوگل کے اشتراک سے ڈیجیٹل سفر پروگرام ڈیجیٹل خواندگی میں اضافہ کرے گا. اساتذہ کو IT کی ٹریننگ دے کر گوگل چیمپئن بنائیں گے. ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے یہ پروگرام اہم حیثیت کا حامل ہے. مزید کہا اساتذہ کے لیے گلوبل سرٹیفکیشن پروگرام بھی لانچ کیا جائے گا. ہمارا عزم ہر فرد کو ڈیجیٹل شہری بنانا ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال سے اساتذہ کا برڈن بھی کم ہوگا. گوگل سرٹیفائڈ ہونے سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا. ہر ضلع کے ٹاپ پرفارمنس ٹیچرز کو گاڑی کا تحفہ بھی دیا جائے گا. پنجاب کو ایسا پے بیک کریں گے کہ 2 سال بعد ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے. اس موقع پر اساتذہ سمیت طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. کیمرہ مین نواز کے ساتھ کامران علی، کوہ نور نیوز. کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت لاہور میں ٹریفک روانی کے حوالے سے اجلاس. DC لاہور رافع حیدر، CTO لاہور امارہ اطہر، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور ڈیولپمنٹ افسران نے شرکت کی. کمشنر لاہور نے ٹریفک روانی اور آگاہی کے لیے ضلع انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور ٹیپا کو ورکنگ ٹاسک دے دیا. کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ ٹریفک لائن قواعد کی پابندی کے لیے شہریوں کو آگاہی دے کر ہی ٹریفک کلچر قائم کیا جا سکتا ہے. روڈ لینڈ مارکنگ اور سائنج کے لیے ٹیپا بھی مشترکہ ٹیم کا حصہ ہوگی. مشترکہ ٹیم منتخب آن سپورٹ پوائنٹ پر ٹریفک فلو رکاوٹ کو شناخت کرے گا. عملی پلان کے ذریعے مہم شروع ہوگی. سڑکوں پر ٹریفک لائن پابندی کے مکمل نفاذ سے قبل عملی پلاننگ ناگزیر ہے. شہر میں عملی ٹریفک انجینئرنگ پلان کے تحت ہی ٹریفک کو روا رکھا جا سکتا ہے.
वज़ीर ने पंजाब की शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक रवानी के लिए वाज़िया हिदायत के मुताबिक अमली प्लान तैयार किया जाए। रोड और सिग्नल डिजाइन तब्दीली के साथ ट्रैफिक एजुकेशन और आगाही के लिए भी प्लान नागुज़ीर है।